Hello everyone, welcome to One Academy CA Squad. Today we all are here for a roundtable discussion. I am Neha Datta, your host and fellow CA. और आज है हमारे साथ incredible CA Inter toppers. तो जानते हैं उनके सक्सेस के सीक्रेट्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन दैट मैटर्स फॉर यू. और इस डिस्कशन का पार्ट बनेंगे अनअकैडमी एजुकेटर अखिलेश दागा. वेलकम सर. थैंक यू मैम. वेलकम एवरीवन. थैंक यू. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन. तो जानते हैं आपके बारे में और साथ ही आपके अचीवमेंट. स्टार्टिंग फ्रॉम यू. So, hello ma'am, my name is Nikhil Jain and I secured All India rank 43 in my May 23 CA Inter examination. Hi ma'am, I am Ansh Markande and मैंने अपना सी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम नवंबर 22 में ऑल इंडिया रैंक 42 के साथ क्लियर किया था एंड करेंटली आई एम परस्यूइंग आर्टिकलशिप एट BSR & Co LLP in corporate and international tax domain. Hello ma'am, my name is Akshay. I cleared my CA intermediate examination a year back by securing All India rank 26th. माई सेल्फ अखिलेश डागा और मैं पिछले 3.5 साल से अनअकैडमी के साथ जुड़ा हूँ, जहाँ पर मैं CA फाउंडेशन लेवल पर इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और CA इंटरमीडिएट लेवल पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ. वेल दैट्स ग्रेट. तो चलिए, जब रैंक की बात आती है तो सबसे पहले मुझे जानना है कि रैंक तो आ गई बढ़िया, अब रिजल्ट देखते आपका क्या रिएक्शन था, कौन था उस टाइम, आपके कैसा माहौल था, मुझे ये जानना है. तो अक्षय आपसे शुरू करते हैं. Okay, so I still remember that day. Rank normally results announced दोपहर में या evening में होते हैं. उस दिन सुबह हुए थे. So I just had my breakfast and results के लिए wait कर रहे थे सब लोग वैसे ही. And मैं रूम में बैठा था. I logged onto the website and as usual पहली बार में नहीं आया. Then I tried a few times. After about 5 to 7 minutes वो result आता है and I see. पहले marks check करेंगे obviously. You despite your confidence you can't go and check your rank directly. Marks check is like alright 619. पहले पास है हाँ 619 है good. Then I checked, अच्छा 619 है तो रैंक होनी चाहिए. Then I checked on my rank and I found out कि हाँ रैंक है. Then I went out and I told my parents that हाँ clear हो गया रैंक का ये. And they were really happy. Like my mom was like, "Are you sure you checked your result?" Like yes, it's mine. See. And then she was happy. She congratulated me. My father was not at home, so I called him. He was just outside, so he came back home. And then I shared my results with him and he was ecstatic. Like that was one of the few times I've seen him very happy with something. Wow. But Yeah. I will tell you one thing. He is my student since CA फाउंडेशन. इसने पहले पास हुआ है नहीं हुआ ये नहीं चेक किया हुआ. इसने पहले ही डायरेक्टली मेरिट लिस्ट देखी होगी, क्योंकि when I have taken his interview during the foundation days, he said me that कि सर मैं इंटर में भी रैंक लेकर आऊंगा एंड दोबारा मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आने वाला हूँ. तो मुझे नहीं लगता इसने पहले पास देखा होगा, इसने पहले मेरिट लिस्ट चेक मैं करी वही होगी. सोच रही जब वो बता रहे कि मैंने मार्क्स देखे, मैं तो सबसे पहले देखती हूँ पास लिखा है फेल लिखा है, नंबर तो क्या कर रही है, पास फेल लिखा है तो सिर्फ. I checked the marks. Then I saw कि marks से पास हो गए. Then I went on to check the merit list and it was kind of expected कि rank है इतने marks है तो. I saw 26th and हाँ ठीक है Just अच्छा है. expected. Oh, great. So yeah, it was great. Yes. Over to you, Ansh. So ma'am, my story is a bit unusual. As Akshay previously mentioned as well, कि the site was not loading properly. I checked on a couple of devices, it wasn't working. Then I took mummy's phone. On it, I checked, so yeah, it was working. After reloading for a few times, I accidentally clicked on the merit list directly because the first time excitement थी, क्योंकि result का somewhere you know कि you may pass, क्योंकि एग्जाम उतने बुरे भी नहीं गए थे. And when I checked it, so I saw the rank and I didn't even realize कि इस मार्क्स को चेक कैसे करते हैं. मैंने सर को भेज दिया, सर रैंक आई है करके. सर बोले मार्क्स तो भेज. मैंने कहा सर वेबसाइट पे रिजल्ट ही आ रहा है, मार्क्स शायद आज आ नहीं गए, साइट पे कुछ प्रॉब्लम करके. तो देन आफ्टर 3-4 आवर्स आई रियलाइज कि अच्छा वहाँ से जाके मेरे को मार्क्स भी देखने थे. टॉकिंग ऑफ व्हाट हैपेंड एट होम, मम्मी वाज एक्चुअली इन द बाथरूम, सो आई रीच्ड आउट टू हर. उनको अपना जल्दी करके आना पड़ा उस चक्कर में. तो शी वाज वेरी हैप्पी टू. Daddy wasn't in the room. I had to reach out to him in the other room. And yeah, just as Akshay mentioned, fathers usually don't react in an overwhelming manner. But that day it was something else, Right. because nobody could have expected that. Like he always says that, okay, you can do this, you can do that. But when you actually do that, it is it different. Right. But right, true. as a whole, that day was really memorable. And I don't think I can even forget a single second of what happened. Beautiful. I can even imagine जब उन्होंने कहा ना कि फादर्स वो तो करते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं कभी अपने इमोशन, पर वो सीए का जब रिजल्ट होता है ना वो वाला मोमेंट होता है when they actually express it. So beautiful. So मेरे केस में ऐसा था कि जब रिजल्ट आया तो सुबह से हम बैठ के वेट ही कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा. नाश्ता कुछ नहीं हुआ है, कुछ खाया पिया नहीं है. तो जैसे रिजल्ट आ गया, बट मैं डायरेक्टली नहीं गया क्योंकि भैया घर पे नहीं थे. तो आई वांटेड टू शेयर दैट मोमेंट विद ऑल ऑफ देम.
तो मैंने वेट किया, फिर जैसे ही भैया आया तो मैंने चेक किया, सभी साइड में ही थे स्क्रीन के, तो मैंने जैसे ही देखा कि पास है तो आई शाउटेड लाइक एनीथिंग लाइक तो बनता है रैंक पे, तो बनता है। पहले तो मैंने पास देख के पूरा चिल्लाने लगा कि चलो पास हो गए। ओके, फिर देखा कि 601 मार्क्स थे मेरे, तो वो देख के फिर डबल शाउटिंग हो गया। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं ऑलरेडी इतना खुश हो गया था कि मैं रैंक के बारे में सोचे भी नहीं था इतना। फिर मैंने सोचा ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं। फिर जैसे मैंने देखा कि 43 रैंक आया है, तो फिर वो शाउटिंग और भी ज़्यादा लेवल पे चला गया, पूरा मोहल्लों को पता चल गया कि कुछ तो हुआ है। तो वैसा था मेरा सीन तो पूरा क्रेजी। वैसे आप लोग ऐसे घर पे बता देते हो रिजल्ट आने से पहले कि रिजल्ट आ रहा है? हाँ टॉपर्स है ना, टॉपर्स तो बता देते हैं। देखो मैं तो बताती ही नहीं हूँ, ये लोग पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं। मैं तो हॉरर सीन। और एक चीज मुझे टॉपर्स की बहुत कॉमन लगी, दे आर लाइक हाँ हमें पता था पास तो हम हो ही जाएंगे। यहाँ तो ऐसा लगता है पास फेल क्या होगा, उनको रैंक पे भी लग रहा है हाँ वेरी नॉर्मल। ग्रेट, सो हैप्पी टू हियर अबाउट दिस टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस, सीखो कुछ। ओके, तो जैसे आपने मेंशन करा कि आपकी रैंक आई है, तो मुझे ये जानना है, मुझे मेरे सारे बच्चों के बिहाफ पे मुझे बता दीजिए आप कि ऐसा है क्या कि जब रैंक आती है तो आप पूरा दिन पढ़ाई करते हैं? वी स्टडीड फॉर 18 आवर्स 16 आवर्स, इज इट सो? कितने घंटे आपने पढ़ाई करी, अपनी लाइफ को कैसे उसके साथ बैलेंस करा, ये जानना चाहेंगे थोड़ा। अंश आपसे शुरू करते हैं। वेल एक्चुअली जैसे आपने कहा कि 16-18 आवर्स इट डज रिक्वायर, बट एट टाइम्स व्हेन द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एकदम से, कि मतलब लाइक अगले वीक से एग्जाम्स हैं या फिर दो 17 डेज ऑफ एग्जाम्स व्हिच आर क्वाइट हॉन्टिंग एट टाइम्स because haunting, we absolutely doubt our own preparation at times because उस वजह से environment इस तरीके से हो जाता है। right, But it does not really mean कि हम अपने personal मतलब जो interests हैं उनको sacrifice कर दें in entirety। या एक course tough है, curriculum is among the toughest in India, so definitely there is a certain amount which you need to sacrifice, but at the same time we should not forget that we should enjoy at times. For example, I was studying for the audit examination and it was 23rd or 24th of October, India Pakistan का मैच था T20 वर्ल्ड कप में। I somehow took out 5 overs वो देखने के लिए उस मैच के लास्ट के जो when विराट कोहली made us win the match. So yeah, sometimes we need to understand कि वो जो adrenaline का rush मिलता है, वो जो dopamine आता है, that also allows us to study well. right. और वो मोटिवेशन भी होता है ना कि चलो मुझे ये देखना है तो मैं पहले इतना सेगमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ, exactly. बाद So में basically we should not kill our own interests, rather they can be boosters at time when we need motivation. एग्जैक्टली ये होता है बैलेंस। So calculative, 5 So overs, calculative. 5 overs only. ऐसी थोड़ी रैंक आती है, कैलकुलेशन बहुत चलते हैं पीछे। वो लग भी अच्छा था वैसे, मेरे को बेस्ट 5 overs देखने मिले थे। ग्रेट, यस अक्षय। So as he said, yes, we should not compromise on our entire life just because we are pursuing a difficult course. But at the same time, I think जहाँ पे consistency का हो जाता है कि study करनी है. So 16 hours, हाँ, but for me it wasn't studying 16 hours every single day. So normally when we see consistency, we feel कि हमें को रोज 12 घंटे पढ़ाई करनी है. For me it was not like that. For me it was मुझे on an average 12 hours पढ़ना है, let's say. So some days it could go to 18 hours. Some days if I have other commitments, it could be at 2 to 4 hours. It could be capped at that. So if you look at it from a broader perspective, let's say भी मेरे पास 9 months है करने के लिए. So I should plan based on an average मुझे कितना पढ़ना है. You can't expect a human being to just put in 16 hours every single day for a period of 9 months. It's True. not reasonable. So yes, consistency is required and putting in a lot of hours is also required because syllabus उतना बड़ा है. But at the same time, it doesn't mean that you have to become a robot and just stick to that same routine entirely. I think that worked out for me. ओके, और लेट्स से अगर किसी दिन मेरा टारगेट था 12 घंटे पढ़ने का, मैंने पूरा प्लान आउट करा था और कुछ भी XYZ रीजन की वजह से मेरा नहीं हो पाया उस दिन, लेट्स से मैं 2 घंटे ही पढ़ पाई और अब बैकलॉग हो गया है मेरा बहुत सारा। सो हाउ टू टैकल विद दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग को इसी का ओवर थिंकिंग हो जाता है कि बैकलॉग हो गया अब इसका क्या करना है। हाँ, so what happens is this is one side of it. The other side is let's say मैंने एक दिन प्लान किया 12 घंटे करना है, मैंने 12 घंटे कंप्लीट किया, then I feel मेरे पास और एनर्जी है, I'll study 2 more hours. So when I do that, now initially all of us we are motivated कि मेरे को पढ़ना है. So if I instead of procrastinating, I procrastinate and I start studying more initially, then मेरे पास वो backlog के अगेंस्ट पे compensation होता है. Let's say अभी जैसे आपने बोला आगे जाके मेरे को 12 घंटे पढ़ना तो मैंने 2 ही घंटे पढ़ा, but I know I'm already 12 hours ahead, so I still have I don't get backlog in that manner. परफेक्ट। Because तो हम हाँ लोग मतलब एक किसी दिन side से ज्यादा हो गया ज्यादा तो पढ़े। किसी दिन कम हो गया, किसी दिन Compensate। ज्यादा हो गया, पर ये रखना है बैक ऑफ द माइंड कि पढ़ना है, ये नहीं कि बस हाँ, obviously. मोटिवेशन में बाहर से ढूंढ रही हूँ, ऐसा नहीं करना है। ओके, सो आप क्या कहते हैं कि कोई और अगर किसी का कोई और इंटरेस्ट है, लेट्स से मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे तो नहीं है वैसे, और लेट्स से मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और अभी मेरे एग्जाम में है थोड़ा सा टाइम, लेट्स से 4-5 मंथ्स हैं, सो शुड आई कंप्लीटली लीव दैट
या आई शुड ट्राई टू मैनेज इट, थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए? आई थिंक कि हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे अक्षय ने भी बोला कि एवरेज में हमें 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने हैं, तो मेरा कैसा था कि मैं 10 घंटे 12 घंटे डेली पढ़ता था। देन मैंने 2 आवर्स डेली के रखे थे अपने साइड के लिए, ताकि फ्रेंड से बात कर सकूं, कुछ करना है तो 2 घंटे मैंने हमेशा रखा था। तो अगर कहीं बैकलॉग भी हो जाता था तो मैं वो 2 घंटा में या तो कवर कर लेता था, या फिर आई केप्ट द 2 आवर्स फॉर चिलिंग। तो मेरा वैसा था। ओके, एक क्वेश्चन मुझे आप तीनों से पूछना है कि मैं बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा प्रमोट करती हूँ कि आपको फ्रेंडशिप थोड़ी सी साइड रख देनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स, क्योंकि देयर आर सम पीपल हु ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग अबाउट पता है एग्जाम बहुत टफ आने वाला है, पता है इस बार ऐसा हो जाएगा, तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर भरते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि फ्रेंडशिप्स उस टाइम पर, एग्जाम टाइम पर मेंटेन करनी चाहिए, या दैट शुड टेक अ बैक सीट व्हाइल वी आर फोकसिंग ऑन स्टडी? I think it depends on the quality of your friendship and who the friend is, right? Because not every friend you have will give you that same opinion. Now, I had a friend with whom I studied for the last, like not exactly the last, but in the month of August, September, wherein we used to just evaluate each other's mock test papers. Now, जब मैंने मई में अटेम्प्ट दिया था, नहीं नवंबर में क्या दिया था, बढ़िया दोस्त है, मॉक टेस्ट ही चेक हो रहे हैं आपस में बैठ के। हाँ, तो नाइस। वैसे फ्रेंड्स भी हैं। So if you have a friend who's so toxic कि उसको सिर्फ यही सोच रहा है that the exams will be difficult, we will तब तो not be कट able ऑफ to कर देना चाहिए ना, देखो सही बताओ। Yeah, because then see, a friendship has to add value to your life, right? It Right. can't just be कि हाँ मेरे को मस्ती करनी है. There has to be something both of you get out of it. And if toxicity is the only thing you're getting out of it, it's better to cut it off. You had ever had those friends जो आपको वो पार्टी ना करने पे या कहीं ना जाने पे गिल्टी फील करवाया हो कभी? Never. Never? Never had. That's Hey. there are some friends जो कि चतुर जैसे होते हैं, जो पढ़ते बहुत है लेकिन बताते नहीं है, ठीक है? Exactly. So you also have to figure it out कि ये कौन चतुर वाला friend है, and you have to stay away from it at times, right? ओके, तो सर बच्चों ने तो बता दिया, अब आपकी अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस जाने, आप क्या कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मास्त्र अगर आप दें कि बच्चे कैसे बैलेंस कर सकते हैं पढ़ाई, व्हाट विल दैट बी? मैम, व्हाट डू आई फील जनरली इज कि स्टूडेंट्स जो है फ्रेंड्स होने चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स दे आर दी वंस दोज हु आर गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू आउट, क्योंकि पढ़ाई करते करते हम लोग ना कई बार स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, एंड वी वांट समवन जिसके साथ हम लोग कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं, बट हमें वो चीज पता होनी चाहिए कि ये कौन से फ्रेंड्स हैं। एज इसने कहा कि ये लोग कुछ प्रोडक्टिव बातें कर रहे थे या कुछ डिस्कस कर रहे थे, सो आई नीड टू बी इन दैट कंपनी, बिकॉज वो कहते हैं ना कि तुम्हारी अगर जो कंपनी होती है वो अगर बेटर है तो आप लोग भी कहीं ना कहीं पर उस लेवल तक पहुंच जाते हो। Exactly. सो यू नीड टू फिगर इट आउट कि मेरे साथ कौन से फ्रेंड्स हैं। कई बार तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आ जाते हैं कोर्स में, बट उनका कोई इंटेंशन होता नहीं है कुछ खास पढ़ाई करने का। सो उन लोगों के साथ हमें फिगर आउट कर लेना चाहिए कि मुझे उनसे दूर रहना है। बट यस, डेफिनेटली फ्रेंड्स तो होने ही चाहिए, आई वुड से, बिकॉज दे आर द वंस दोज आर गोइंग टू लिफ्ट यू अप इन द बैड टाइम्स। सो दैट्स व्हाट आई फील दैट। ओके, सो बीइंग अ रैंक होल्डर, आपने जैसे हम YouTube पर तो बहुत सारी चीज़ें देखते ही हैं यूजुअली कि स्टडी टिप्स, टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, आपने अपनी ऐसे कोई कस्टमाइज टेक्निक बनाई या यूनिक टेक्निक जो आपको लगा दिस इज वर्किंग परफेक्टली फॉर मी? एनी टेक्निक? I would say technique, but एक approach है जो मेरे एक लिए, approach, बताइए। which worked for me. Normally what we do is we'll study the entire course and then we'll start practicing. For me, practicing along with the course worked well because then मैं भूल नहीं जाता था जब तक एग्जाम आती है. Let's say if I complete the entire course, I start with accounts, I go till FM, and after that if I start practicing, जब तक मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ accounts law भूल चुका हूँ. I don't remember a thing about those subjects. But if I start, let's say मेरा accounts खत्म हो गया and the next day I start practicing, या फिर मेरा accounts चल रहा है 50% हो गया and I start practicing, थोड़ा सा ही सही. But then till my course ends in its entirely, I still have something to hold on to. I know कि कौन से chapter में क्या है, कहाँ पे क्या concepts है, stuff that I find difficult. अगर मैं if I keep everything for the end, then two things happen. One, I forget most of it, and second, pressure build हो जाता है. Because at the back of my head, I do have these things कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. But if I keep at it on a consistent basis, then I don't have that pressure because I know exactly how much I need to put in effort. So that worked out for me. I figured it out on my own somehow, क्योंकि यूजुअली सभी का यही अप्रोच होता है कि पहले हम सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस करा, मॉक टेस्ट करा तो करा, मतलब जो पेपर लिखना है वो हमने करा तो करा, अभी पढ़ लेते हैं. एंड आई स्टार्टेड टेलिंग एवरीबॉडी कि आप ऐसा देखो कि आप खाए जा रहे हो, खाना खा रहे हो, एंड यू आर नॉट इवन चेकिंग एम आई डाइजेस्टिंग इट और नॉट. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन?
तो द सेम गोज हेयर कि जब आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको पता चले जो मैंने पढ़ा है मेरे माइंड में कितना रिटेन हो रहा है. वंडरफुल टेक्निक, वर्क फॉर मी, आई कैन वाउच फॉर दिस. एनी अदर टेक्निक? As you mentioned, कि techniques are very personalized usually. So a specific technique usually won't work for the other person if it works for me. Absolutely. As Akshay also said, approach-based thing is a lot better in my opinion as well. However, ठीक है, कुछ चीज़ें हम with the flow figure out कर लेते हैं कि okay this thing is working for me. For example, I used to theory subjects even till foundation, like मेरे को थोड़ा सा लगता था कि there is a problem that I have to retain this much. तो मैं इसको कैसे करूँ? Then I used to do one thing कि हमें बुक में exactly ये नहीं बताया जाता है कि हमें कितना मार्क करना है. So what I used to do, जितना मेरे को पढ़ के फर्स्ट टाइम में जो एक इंट्यूशन आती है कि ओके दिस मच इज परफेक्ट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, साइड में मार्जिन स्पेसेस दिए रहते हैं, वहाँ लिख लिया. ऐसे करके अब हर सब्जेक्ट के लिए, दिस इज़ फॉर अ थ्योरी सब्जेक्ट, मे बी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम कुछ और अप्रोच रख सकते हैं. सो जस्ट गिव अ बिट ऑफ अ पर्सपेक्टिव कि हम चीज़ों को पर्सनलाइज भी कैसे कर सकते हैं विद. बट ये चीज़ वही है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे, मे बी मैंने 7-8 चैप्टर करे होंगे तब मेरे को जाके एक बार हिट एंड ट्राई से ये टेक्निक मिली होगी, तो इट काइंड ऑफ हेल्प्स इन दैट वे. बट या अप्रोच इज ऑलवेज दिस कि अगर हम साथ में किसी चीज़ को कर रहे हैं सो दैट वी डोंट फॉरगेट इट, वी नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग इट. वो जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि स्मार्ट वर्क करा अगर कि Yes. इंट्यूशन बेस्ड, तो स्मार्ट वर्क के लिए भी पहले बहुत हार्ड वर्क लगता है कि मैंने पहले बैठकर 6-7 चैप्टर पढ़े कि क्या उसमें क्या मैं टेक्निक लगा सकती हूँ. तो हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर स्मार्ट वर्क पर भी जाना है तो. परफेक्ट. सो आई टोटली एग्री विद अक्षय एंड अंश. तो मेरा एक पॉइंट रहेगा कि जो गलती मैंने भी स्टार्टिंग में करी थी इंटर के प्रिपरेशन में, कि हम हमेशा बहुत ज़्यादा रश में रहते हैं कि सिलेबस खत्म करना है. बहुत ही तो ज्यादा. तो कभी कभी क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट को छोड़ के कॉन्सेप्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करके हम जल्दी खत्म करने के चक्कर में फास्ट में देख लेते हैं. बट जो कि मैंने भी बाद में सफ़र किया थोड़ा सा कि हमें कॉन्सेप्ट, ठीक है सिलेबस जल्दी खत्म करना है बट हमें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करना है कि डेप्थ में जाके अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमें वो सेकंड टाइम और अच्छे से रिटेन होगा. अगर हम अच्छे से अभी करेंगे नहीं तो बाद में हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. ये होता है ना बच्चों का, नंबर ऑफ रिवीजन मुझे इतने करने हैं कि मैम मैंने तो 5 नंबर ऑफ रिवीजन करे थे, दीदी मैं कैसे फेल हो गया, 5 बार रिवीजन करा है. और जैसे इन्होंने कहा कि निखिल ने बहुत सही कहा कि पहली बार में डेप्थ में पढ़ा नहीं है, 5 बार कर लिया, उससे क्या फायदा. अगर आप डेप्थ में पढ़ते हैं तो आपके नंबर ऑफ रिवीजन फिर कम हो जाते हैं क्योंकि आपको एक दो बार में समझ आ गई चीज. एंड आई ऑल्सो रिलेट दिस टू वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन. जैसे कि विराट कोहली अगर मैच खेलने जा रहा है, सो डायरेक्टली स्टेडियम में जाकर वहां पर नहीं शॉट्स खेलेगा, उसको नेट प्रैक्टिस अरे करनी हमारे पड़ती बच्चे है. बहुत कॉन्फिडेंट हैं डायरेक्टली नहीं. नेट प्रैक्टिस करना इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड विराट कोहली को तो पता है ना कि स्ट्रेट ड्राइव कैसे मारनी है, फिर भी वो बार बार स्ट्रेट ड्राइव की प्रैक्टिस कर रहा है. विराट कोहली को पता है ही इज द बेस्ट कवर ड्राइव मारने में, वो बेस्ट है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है. सो दैट्स व्हाट यहाँ पर हमें बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिस. जो कि सारे लोगों ने एक चीज कॉमन में कही थी, प्रैक्टिस करना. एंड आई ऑलवेज से दैट कि विराट कोहली आज बोले कि यार मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैं तो डायरेक्टली चले जाऊंगा और छक्के चौके मारने वाला हूँ. बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. So it's very important students that you need to understand that कि प्रैक्टिस करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो, बीच बीच में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द थिंग्स. सो वेरी वंडरफुल एवरीवन, सो दैट्स व्हाई दे आर टॉपर्स. एग्जैक्टली दीज. और इनका इन्होंने एक चीज बहुत सही क्रैक करी है, जैसे अंश ने भी कहा था कि जो टेक्निक्स होती हैं और या अप्रोच होता है ये सबकी कस्टमाइज होती है. So you can listen to everybody and then analyze what's working out for me and what's not. जो आपके लिए वर्क कर रहा है उसी को फॉलो करें और बाकी तो ठीक ही है, सब बढ़िया ही है. तो पढ़ाई की तो बहुत सारी बातें हो गई हैं. अब जैसे कि इतने सारे रैंक होल्डर्स यहाँ पे, अभी तो ऐसे दोस्तों जैसे सब बात कर रहे हैं आपस में, मैंने सोचा इसमें बीच में डाले थोड़ा सा मसाला, आपके बीच में करवाएं एक फाइट जो कि है नॉलेज की फाइट. मेरे पास है 10 क्वेश्चन, टीम लेकर आएगी अभी बजर. आप में से जो भी सबसे पहले बजर दबाएगा उसको जवाब देने का मौका मिलेगा और जिसने एट द एंड ऑफ द गेम सबसे ज्यादा सही जवाब दिए वो होगा विनर. अब इस गेम में यूजुअली प्रॉब्लम ये होती है कि आप सबको बहुत ज्यादा नॉलेज है और आप एक्साइटमेंट में सिर्फ साइमल्टेनियसली बजर दबाते हैं. वी आर अनेबल टू फिगर आउट हु प्रेस्ड इट फर्स्ट. तो सर हमारा साथ देंगे इस गेम में एज एन एम्पायर. बिल्कुल. टीम कैन वी प्लीज हैव द बजर्स? ओके, तो बजर्स आ गए हैं, एक बार टेस्ट कर लीजिए, बजा के देख लीजिए. You can bribe me for this. We'll do our best. Okay, so let's begin. पहले सारे ऑप्शन सुनने हैं तब बजर दबाना है.
हाथ सबके रेडी हैं तो मैं पहला क्वेश्चन बोलती हूँ जल्दी से. So the first question is, what is the primary purpose of a cash flow statement? A. Assessing profitability. B. Evaluating liquidity and solvency. C. Measuring operational efficiency. D. Reporting on shareholder equity. The option B. Well done. So correct answer is B. Evaluating liquidity solvency. Question number 2. Which financial statement reflects a company's financial position at a specific point in time? A. Income statement. B. Cash flow statement. C. Balance sheet. Or D. Statement of changes in equity. Akshay. C balance sheet. Perfect. So 1 and 1. ठीक है. Question number 3. What does the term derivative refer to in financial markets? A. Tangible assets. B. Options and future contracts. C. Long-term investments. D. Cash equivalents. निखिल. उसने ऑप्शन खत्म होने से पहले बोला. निखिल. चीटिंग है सर अभी चीटिंग कर रहे हैं. उसने ऑप्शन खत्म होने से पहले बोला. ये देखें, जाग गई. अब ये लड़ने वाले हैं. अब लड़ने वाले हैं. ये हो रही है ना मैं फाइट. तो पहले बोला था you can bribe me for that. Yes. Option B. Perfect. Options and futures contract. Question number 4. In accounting, what does the term EBIT stand for? A. Earning before income tax. B. Earnings before interest and taxes. C. Earnings before interest and depreciation. D. Earnings before interest, tax and dividends. Akshay. Earnings before interest and taxes. Perfect. Correct answer. So it's 2 and 2. Ansh, you need to. अंश थोड़ा हाथ जमा के रखो बजट पे. मेरे मिस हो रहा है. आई थिंक मैं कर रहा हूँ. सर व्हाट डू आई नीड टू डू? Bribe. You need to bribe me. That's it. Moving on to question number 5. कोई बात नहीं, 4 ही क्वेश्चन हुए अभी और 6 क्वेश्चन है. Question number 5. What is the primary objective of an internal audit? A. Ensuring compliance with tax regulations. B. Detecting and preventing fraud. C. Preparing financial statements. D. Attracting external investors. Akshay. B. Prevention and detection of fraud. Correct answer. Moving on to question number 6. Which valuation method assumes that the historical cost of an asset is the most reliable measure of its value? A. Market valuation. B. Fair value accounting. C. Historical cost accounting. D. Replacement cost valuation. Ansh. चीटिंग कर रहे हैं. सी हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग. Correct answer. इस बार इनका हाथ बिल्कुल रेडी था एकदम बजर पे. I can see that they are shivering over here. उनको अपना रिजल्ट याद आ गया एकदम से. वापस चले गए इंटरमीडिएट में. इट्स अबाउट रेपुटेशन नाउ. क्या बात है. ये हुई ना, ये सही करा हमने बिल्कुल. कॉम्पिटिटिव भावना, पहले ऐसे दोस्तों की तरह आपस में बात कर रहे थे, अब आई ना वो बात. Question number 7. What is the purpose of the corporate social responsibility CSR initiative in business? A. Maximizing profits. B. Enhancing shareholder value. C. Contributing to social and environmental goals. D. Reducing operational cost. This was difficult. I think तीनों का साथ में था, but I have to go with one, and it's Nikhil. So it's C. Correct answer. So cheating कर रहे हो आप. Equal था. It was equal actually. वी नीडेड अ वीडियो रिव्यू हियर. हाँ, DRS. review चाहिए. Next umpire. Question number 8. What is the primary function of the Securities and Exchange Board of India, SEBI? A. Ensuring ethical behavior in business. B. Regulating capital markets and securities. C. Facilitating mergers and acquisitions. D. Controlling inflation rates. Akshay. B. Regulating the capital markets. Correct. वो चेक कर रहा है, मेरा बच तो रहा है. बज रहा है. Preparing for the next one. So 4, 3 and 1. I've already lost, I guess. Now the question number 9. Which accounting standard governs the treatment of leases in financial statements? A. AS 10 accounting for fixed assets. B. AS 19 leases. C. AS 26 intangible assets. D. AS 17 segment reporting.
So question खत्म होने से पहले not क्वेश्चन counted. खत्म, मेरे ऑप्शन I pressed the नहीं, button. क्वेश्चन खत्म ऐसे हुआ नहीं था, हाँ but राइट, ठीक we है। will still give him the ठीक है chance. सर। BAS 19 these वो हंस India's रहे कौन सा क्वेश्चन है? पे कि अरे ये क्या ब्रो India's हम कौन सा रैंक है? होल्डर हैं, थोड़े भारी भारी क्वेश्चन लाओ। खुश हो अभी ना, Was हम that चल the रहे हैं ना correct बस। I'm more concerned कि आंसर गलत हो गया। अरे आंसर ठीक था, करेक्ट आंसर। So last question है, the scores are 4, 3 and 2. So still you got a chance. तो इक्वल हो सकता है। टाई ब्रेकर क्वेश्चन मैम आपको सोचना पड़ेगा, एक नया क्वेश्चन, अगर टाई ब्रेकर होता है तो। ओके, मैं तो सोचती हूँ ना ही हो टाइप में, सोचना ही ना पड़े नया क्वेश्चन। सर सोच लेंगे। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा। What is the primary objective of implementing the International Financial Reporting Standards (IFRS)? A. Promoting consistency and compatibility in financial reporting globally. B. Facilitating tax planning for multinational corporations. C. Simplifying accounting procedures for small business. D. Ensuring compliance with regional accounting norms. अक्षय, Ensuring comparability and consistency, the first one. Perfect. So the winner is. so we have the clear winner over here, Akshay. With a heavy ass. Heavy heart. तो कैसे लग रहा है? तो आप दोनों को कैसा लग रहा है फिर? मेरे को इसके लिए बुरा लग रहा है। ये हर बार राउंड टेबल में मेरी की होती है। पिछली बार That was nice. मुझे इसके लिए बुरा लगा। तो विनर है, तो विनर के लिए प्राइज भी होना चाहिए। टीम, कैन वी हैव द प्राइज फॉर द विनर? क्या बात है, क्या ये मैं रख सकती हूँ? काश में भी पार्टिसिपेट कर देता। लीजिए। वो पूछ रहे रख लूं क्या? रख लो, वापस ले लेंगे हम आपसे। तो आप सब लोग तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, लेकिन अगर आप लोग भी कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो हमारी G1 और G2 की बैचेस शुरू हो रही है अनअकैडमी पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो जाइए, चेक इट आउट द लिंक्स ओवर देयर एंड प्रिपेयर विद अनअकैडमी। तो सर ने तो बता दिया एग्जाम में कॉन्फिडेंट होने का तरीका। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। और हम कंटिन्यू करते हैं अपना आगे का कन्वर्सेशन। तो जानते हैं सीए एग्जाम के जब आपका प्रिपरेशन चल रहा था, उस टाइम पर आपको कोई चैलेंजेस आए क्या अपनी जर्नी में? एनी चैलेंजेस यू कैन? सो मेरे साथ एक चैलेंज आया था कि मैं रात को पढ़ाई करूं, सुबह पढ़ाई करूं। तो मैंने जब टॉपर्स के वीडियो निकाले तो उसमें सब बोलते थे कि हम सुबह पढ़ाई करते हैं, सुबह पढ़ाई करते हैं। तो मैंने भी वो ट्राई करने का, मतलब वो किया ट्राई, बट वो मेरे से तो नहीं हो पाया। तो इसलिए फिर मैंने नाइट शिफ्ट लगाया एंड मैंने 6 बजे तक पढ़ाई की है। तो वो मेरा स्ट्रेटजी था। ये वाला चैलेंज तो मुझे भी आया था। मैंने भी यही करा। मैं सबसे पहले जाके सारे, हम वही, हमारा गो टू प्लेस वही होता है कि जिसके पहले अच्छे मार्क्स है उसने क्या बोला है। तो मैंने बहुत चेक करे, तो वही कोई कह रहा है अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, कोई लेट नाइट पढ़ते हैं। मेरा सेट ही नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने अपना अलग बनाया कि मैं सुबह 3:30 बजे उठ के पढ़ूंगी। दैट वर्क बेस्ट फॉर मी। ये चैलेंज तो मैं मान सकती हूँ। ये पूरे जगत को चैलेंज होता है ये वाला। वेल मेरे केस में सबसे मेन चैलेंज था वाज मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। मतलब ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज इजी टू से, आज मैं बोल देता हूँ कि आई मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड ऑल दैट, बट आई मस्ट एडमिट एट टाइम्स कि मेरी कंसिस्टेंसी भी कई बार मेंटेन नहीं होती। बट एट दैट टाइम you need to understand that where you want to see yourself in the next 1 year. I just had somehow told myself कि the next year I want to be doing articleship right after 365 days, and I don't know wherever I'll be doing it, but I have to be an article, that's it. So even on those days when I didn't feel like studying, it kind of pushed me, like मैं 10 घंटे तो नहीं पढ़ पाता था, लेकिन 5-6 घंटे तो वो kind of एक flow बना रहता था। तो yeah, that's तो जब भी ये भी क्वेरी बहुत ज्यादा असर आपके पास भी आती होगी बच्चों को कि हमारी ना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है, क्या करें? तो उसके लिए बहुत सही तरीका है ये कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हमें क्या लगता है कि मुझे अभी फन चाहिए, अभी घूमाऊं, पार्टी कराऊं, मूवी देखाऊं। ये देखना है कि मैं कहाँ देखती हूँ खुद को 6 महीने बाद। तो ये चीज को, विजन को ध्यान रखो, तो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द कंसिस्टेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही सेड कि टॉपर्स भी डिसकंटिन्यू हो जाते हैं बीच में पढ़ाई करते करते। दैट्स नॉर्मल, दैट्स वेरी मच नॉर्मल, एंड यू नीड टू रिमेंबर द पर्पस बिहाइंड इट कि व्हाई आई स्टार्टेड एंड वेयर आई वांट टू गो। सो दैट्स रियली नाइस। एग्जैक्टली। योर्स? For me, I think the biggest challenge that I had during the journey was towards the end when I started practicing test papers. Completing a paper in that 3-hour time, that is the biggest challenge that I faced, because
irrespective of how much practice you have had, वो नहीं हो पाता है 3 घंटे में पूरा, at least with the quality that I wanted to. So what I did was, instead of focusing on completion, I focused on accuracy. So even let's say I am only able to complete 85% of the paper, I'll know that I'll score at least 80 out of that 85. Absolutely. उतनी accuracy चाहिए. So even if, so what happened was, during the exams I was only able to complete costing as an entire paper. बाकी सारे papers में I had left about 10 to 20 marks worth of paper. Costing एक था जिसमें 100% attempt किया था, उसमें 99 मिला है. बाकी जिसमें कम attempt किया था, उसमें जितना attempt किया 99? उसके हिसाब से accuracy के हिसाब से जितना attempt किया about 90% उसका score आया है. So I think instead of just focusing on completing, you should also focus on your accuracy. जैसे Exactly. अभी निखिल ने भी बोला कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने में चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्वालिटी. वी डू द सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्टिंग योर एग्जाम्स. वी फोकस ऑन क्वांटिटी. जब भी वैसे पर किसी को भी जब भी हम रैंक होल्डर के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है रैंक होल्डर मतलब ये पूरा 100% सिलेबस पढ़ के हाँ. गया होगा, मतलब इसको तो कभी कंसिस्टेंसी का इशू नहीं आया होगा, मतलब ये अलग अलग गोले से हाँ, आए अलग हुए लोग प्राणी। हैं, ये इनको कोई दिक्कत नहीं होती है. पर इनसे बात करके लगा नहीं सर कि कितने जेन्युइन कंसर्न्स Right. हैं जो हर स्टूडेंट को होते हैं, बस बट इट इज अबाउट हाउ यू ओवरकम दैट, हाउ यू डील विद दैट. And as a educator, I always have this question कि सर हम लोग यहाँ पर दिन भर पढ़ रहे हैं and we are trying to figure it out कि हम लोग कैसे 100% syllabus cover करें. But as he rightly said that in spite of going for the quantity, you also need to focus on the quality Quality and the matters. accuracy. So मैं तो कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जैसे कि मैथमेटिक्स में बच्चों को काफी दिक्कत होती है फाउंडेशन में. So in spite of that, you try to focus that कि मैं यहाँ पर कैसे एक्यूरेसी के साथ स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट कर दूँ, लॉजिकल रीजनिंग पूरा कंप्लीट कर लूँ और वहां से मैक्सिमम मार्क्स चुरा लूँ, so that इतना तो पता चल जाए कि मैं पास हो जाऊँ उसमें. So that's really important. Quality matters a lot. ऐसा नहीं करना है कि आके कि हम तो 100 मार्क्स का पेपर करके आए थे और आए तो 30 भी नहीं है उसमें. टॉपर्स भी 5-10 मार्क का छूट जाता है, so that is fine. But बाकी जो लिख रहे हो बहुत अच्छे से लिखना है. So that's really great. और मुझे आपसे जानना है, कभी कभी ऐसे दिन होते हैं ना व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग, नॉट मोटिवेटेड एट ऑल, या कभी आपके टारगेट्स पूरे नहीं हुए, या कभी लगता है यार कितना ही पढ़ेंगे, हमारे आसपास के लोग तो फन कर रहे हैं, हम क्यों पढ़े जा रहे हैं इतना. तो जब वो मोटिवेशन नहीं आता है तो आपको क्या मोटिवेट करा? सो मेरे लिए ये था कि मुझे लाइक द अनसॉल्व्ड थ्रेड कि मैं एक पिक्चर था मेरे माइंड में कि 1 साल बाद मुझे यहाँ होना है. तो मेरे स्टार्टिंग से ही मेरा क्लियर था कि नेक्स्ट ईयर मैं आर्टिकलशिप में होऊंगा, बिग 4 में होऊंगा. तो वो एक इमेज हमेशा मेरे माइंड में था, तो वो मेरे को जैसे भी करके क्रैक करना था. वाओ. हाँ, as I previously mentioned, एक तो मतलब kind of not exactly manifestation but kind of where you want to see yourself. But at the same time जब हम कई बार अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे होते हैं तो it's our parents who hold our hands because Right. they're seeing the effort we're putting into it. So seeing them support us in that manner kind of also motivated me in particular कि नहीं यार मतलब थोड़ा सा I can push myself. Already they're sacrificing so much for me. उसके बाद भी they're trying to understand what I'm going through. So I should at least try a % better than this, 2% better than this, and getting better day by day. Beautiful. Yes. For me, I don't think it was about motivation at all, because the motivation, it's like a short-term dosage of just punching through things. Right. For me, it was about consistency and discipline. Because motivation mein you'll be motivated to study today, you won't be motivated to study tomorrow perhaps. And if you leave it at that, it's like leaving things to your emotions, and emotions are not predictable. But when it comes to discipline, let's say I say ki I need to complete this amount of work today, so I have to complete that. अगर आज नहीं होता है, then it's not going to be about motivation. नहीं हुआ है, that's a cross, that's a strike. I need to complete it before this deadline. So as long as I can keep up with that discipline, motivation doesn't come into the picture. ये बदलना बड़ा प्रैक्टिकल है. मैं पूरी बात का डेप्थ समझ रही थी कि कितनी डीप बात है ये. And he is having so much of clarity. मतलब जो भी वो बोल रहा है ना, उसके पीछे there is a very strong foundation, I would say. Distraction चांस ही नहीं है, and that's what make them different. यूजुअली हम सभी क्या करते हैं ना, मोटिवेशन देखते हैं, मोटिवेशन. मैं तो खुद बोलती हूँ, मतलब बीइंग समबडी हु मोटिवेट्स पीपल आउट देयर, मैं बोल डिस्क्लेमर साथ में देती हूँ कि देखो इसका वैलिडिटी ज्यादा लंबा नहीं है. अल्टीमेटली तुम्हें खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा. सो नोइंग योर व्हाई आई एम डूइंग इट, लुकिंग एट योर पेरेंट्स कि वो कितना कर रहे हैं मेरे लिए. एंड जैसे कि अक्षय ने कहा, बहुत सही चीज है कि हर दिन आपको मोटिवेटेड फील नहीं होता है. इट्स अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट शोइंग अप कि आप बैठे हैं पढ़ना ही. आप, मैंने हमेशा कहती हूँ कि आप बस खुद को ना एक बार फोर्स करके टेबल तक ले आओ. टेल योर माइंड कि हम सिर्फ 5 मिनट पढ़ेंगे, टेबल तक चलते हैं. एक बार आप टेबल पे आ जाते हो, फोन नहीं है, अब पढ़ोगे ही ना. अब इतनी मेहनत करके टेबल तक आए हो, बुक खोल लिए, तो
सो इट्स जस्ट अबाउट शोइंग अप. और डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है. सारे जो टॉपर, रैंक होल्डर, सबके आपके जैसे ही क्वेरीज हैं, आपके जैसे ही इश्यूज हैं. बस द वे दे आर डीलिंग विद देम, दैट्स व्हाट मेक देम रैंक होल्डर्स. एंड मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है एक मूवी का, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज आई कैन से, कि मुझे दौड़ना है, मुझे गिरना है, बट मुझे रुकना नहीं है, मुझे बस चलते रहना है. सो दैट्स हाउ इट इज आई थिंक, एंड द लाइफ एग्जैक्टली गोज इन दैट वे. एंड आई ऑलवेज बिलीव इन दैट. बहुत सही है लाइफ वो, कि यार चलते रहो. वो होगा ना कि मुझसे आज नहीं हो पा रहा है. यू कैन नॉट रन ना, एटलीस्ट यू कैन वॉक. यू आर मूविंग फॉरवर्ड. सो दैट मूविंग फॉरवर्ड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस डायलॉग एक्चुअली हिट्स. और ये जो हम कहते हैं ना कि मैं भी ये कहती हूँ कि जैसे मुझे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लग गए, तो उसके बाद आई नेवर रिग्रेट माई जर्नी, क्योंकि वो जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाती है. तो CA is not just a course, it's a journey you live. Right. और जो ये सब बातें कर रहे हैं, इसकी जो डेप्थ है ना, इन्होंने लाइफ का एल्गोरिदम क्रैक कर लिया है. उनको एग्जैक्टली पता है. अब उन लाइफ में कभी मोटिवेटेड फील नहीं होगा, तो उनको पता है इमोशन पे नहीं छोड़ना है, करेक्ट, शो अप करना है. Yes. या खुद ही मोटिवेशन आएगा. तो दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन, दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स. तो अगर आपको एक एक विजडम देना हो बच्चों को जो अभी एग्जाम अपियर करेंगे, व्हाट विल दैट बी? वन पीस ऑफ एडवाइस स्टार्टिंग फ्रॉम यू. Okay, इतनी let's डीप start from नहीं, इतनी डीप बातें करिए, अब हम आप ही से सुनेंगे. Okay, so the one thing that I've learned over the years, the one thing that I'd like to share is you never know how much your parents are doing for you. You don't see what kind of efforts they're putting in, and because you don't know, you sometimes fail to appreciate it. So irrespective of whatever you're going through, how much ever hard work you're putting in, you should never fail to appreciate how much they are doing for you. Absolutely. right. It couldn't be like नहीं मैंने इतना किया है अभी, उन्होंने तुमसे ज्यादा ही किया है तुम्हारे लिए. Right. बहुत क्या ज्यादा. बात है. एंड दैट्स आई कैन से दैट कि यार वही एक निशानी होती है जो इंसान सक्सेस अचीव करने के बाद भी उसे डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए. एंड यू शुड रिमेंबर ऑलवेज कि किसने तुम्हें साथ दिया था. क्योंकि जब एग्जाम टाइम होता है ना, हमारा खुद का फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल पे होता है. एंड वी कम अप टू आवर पेरेंट्स से, आप नहीं समझोगे, आपको क्या पता हमको कितना टेंशन है. अरे उनको सब पता है, Right. वो देख रहे हैं आपको पढ़ते हुए. यू जस्ट स्टे ग्राउंडेड, यू जस्ट अप्रिशिएट एंड डोंट टेक देयर एफर्ट्स फॉर ग्रांटेड कि हाँ ये तो तुम्हारा फर्ज ही था करना. ऐसा नहीं है, ना करते तो आप क्या कर लेते. I also met Such a his deep parents, and even he is of very much, I can say, the man of principles, and he is an amazing personality. मैं उनके father से मिला था, and he is a gem of a person, I would say. वो तो उनको देख के पता चल रहा है. Thank you. Perfect. Yes. So I'll say to anyone watching this video, basically CA aspirants ही होंगे. Whether you're in inter or in foundation, you're exactly where you're supposed to be. Past कैसा गया है doesn't matter, but where you'll be, that is in your own hands. You can't change anything about what has happened. Think prospectively, and that's all I could say. Everything is going to be fine as long as you are going to make sure it is going to be fine. क्या बात है. सो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि सुनो सबकी बट करो अपनी. क्योंकि मेरा भी यही रहेगा. हम पूरा प्रिपरेशन आगे पीछे भागते रहते हैं, स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं कि ये कर लें, उसका सुन लिया, ये कर लें. बट जो वर्क करता है वो सबके लिए डिफरेंट होता है, जैसे हम सबने भी कहा. तो अपना स्ट्रेटेजी चूज करो और उसी में करो. सबका सुनते रहोगे, चेंज करते रहोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत अजीब हो जाता है फिर. परफेक्ट. यस सर, आप बताइए कुछ. what do I generally feel is कि CA, जैसे कि आपने भी कहा था मैम, CA is just a part of your life, it's not your life. और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी का तुरंत निकल जाएगा, किसी का शायद तुरंत नहीं निकलेगा, एंड यू माइट बी स्टक समवेयर इन द लाइफ. बट CA तुम्हारी लाइफ नहीं है, ये एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है. एंड लाइफ इज मच मोर हैपनिंग देन आफ्टर दैट, आफ्टर बिकमिंग CA. और बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होगी लाइफ में, एंड छोटे मोटे रुकावट आती रहेगी. एंड आई बिलीव दैट कि यार प्रॉब्लम्स ना हर एक इंसान के लाइफ में होते हैं. बस किसी के लाइफ में छोटी प्रॉब्लम्स होती है, किसी के लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है. एंड आई ऑलवेज बिलीव इन वन लाइन, एंड आई ऑलवेज से इट इन माई क्लास, द शो मस्ट गो ऑन. चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, इफ यू कंपेयर योर लाइफ विद समवन एल्स, तुम्हें लगेगा कि यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस. सो आई बिलीव इन द वन थिंग ओनली, दैट इज द शो मस्ट गो ऑन. मैम, आप क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? मैंने जो अपनी जर्नी में सबसे ज़्यादा चीज़ की वजह से स्ट्रगल करा वो ये, एज ही मेंशन, कि हम ना अपनी स्ट्रैटेजी पर कभी विश्वास नहीं करते. हमें लगता है बाहर जिसने जो कह दिया वो सही बात बोल रहा है. Correct. मेरी ही गलती है, मैं ही नहीं समझ रही हूँ, शायद मेरी स्ट्रैटेजी में कोई गलती होगी, जबकि ऐसा नहीं है.
अगर मैं खुद पे विश्वास नहीं करूंगी तो मुझ पे कौन विश्वास करेगा? करेक्ट. तो अगर आप खुद एक गड्ढे में गिरे हो तो कोशिश करके खुद को पहले बाहर निकालो ना. इफ यू जस्ट कीप ऑन लुकिंग हियर एंड देयर, आप और ज्यादा डिले कर रहे हो, वहीं पर फंसे रह जाओगे. तो जो खुद को समझ आ रहा है, और जैसे इन तीनों ने कहा, कहीं ना कहीं इनका एक खुद पर बिलीफ कि एक विजन बनाना अपने लिए, फिर उसको बिलीव को, अभी तक वो चीज उनको नहीं दिखी है 6 महीने बाद में वहां होगा या नहीं होगा. नो श्योरिटी. जो हमेशा लाइफ में हमें श्योरिटी चाहिए कि बस बता दो हम पास होंगे तभी पेपर लिखने जाएंगे. राइट. ऐसा नहीं है. अपना एक आइडेंटिटी बना के इन्होंने विजन कि 6 महीने बाद मुझे यहाँ होना है, उस बिलीफ के सहारे ऑप्टिमिज्म के साथ काम करते रहना. तो खुद पर प्लीज विश्वास करिए. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड ब्यूटीफुल सजेशंस. थैंक यू सो मच सर फॉर एडिंग सो मच ऑफ विजडम हेयर. एंड आई होप आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंसाइटफुल रहा होगा. आपने क्या सीखा, बेस्ट चीज क्या सीखी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. For more such amazing and insightful content, like, share and subscribe to Unacademy CA Squad. And from all of us, Let's crack crack it. it.